We'll start with the classification of the data representation today. Okay. Till now, we have studied the basic concept of the statistics and the need and the applications of the statistics in the various field. Okay. Uh, Today we will discuss the new topic, which is the classification of the data representation. How do we classify the data representation, and what are the different type of the frequency distribution and the data, what is the concept of the data graphical representation, the classification of the representation. Okay, so these things we will discuss in today class. Okay, the first is data representation. Generally, we divided data representation into two parts: categorical and numerical. Categorical and numerical we can also called as the quantitative and the qualitative. So we have two type of the data representation. First is categorical data, which we also called as the qualitative. The second type of the data is numerical, which we also call the quantitative. So basically two type of data we have in the statistics when we are talking about the data representation part. In categorical data, we can take up the example. For example, the age. Age we can divide as a category. No, not basically gender. The example of the categorical data is gender. Gender we can divide into two parts. There are two categories of the gender. First is male, or first is female and male. This is the categorical data. There is no numerical data in this example. Okay. This is the one category. In numerical data, we can take up the age. In second type of data, which is the numerical, and we can also call the qualitative, quantitative data, we include the example as the age, which can be differ person to person. For example, two males having the age of 5 feet 4 inches. Okay, and second person having the age, no, it's age. This is the age, not a height. Okay, height also we can include in this form, numerical or quantitative data. Age we can include 12-year-old, okay, 15-year-old. So these are the two types in the statistics. So we have the two type of data. First is categorical, we can also called as the qualitative. Okay, qualitative data we have already discussed in our previous classes, that qualitative data directly refer to the those data which or those data which we cannot quantify the specific thing, like gender. Gender we cannot specify in a number, and if we are talking about the numerical data, which we also called the quantitative data. In quantitative data we can quantify the specific thing of the person or thing. Okay, for example, age 12 year, 5 year, 16 year, 60 year. Height also example of numerical data, 6 inch, 6 feet, 8 feet, 10 feet. तो दो तरीके से हम दो तरह से डेटा इसमें हम देते हैं, पहला कैटेगोरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल, ये हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट पार्ट इज द स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल.
डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स क्या होती हैं और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स क्या होती हैं? जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होती हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं ग्राफिकल और न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स पे, और जबकि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होती हैं वो ज़्यादा फोकस करती हैं प्रिडिक्शन पे, यानी कि इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन पे। ओके, कंक्लूजन पे, एस्टिमेट पे, फोरकास्टिंग पे, प्रिडिक्शन पे, बाद में जब हम सारा डेटा एनालाइज कर लेते हैं तो तब हम फिर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव जब हम डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं, ग्राफिकल चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं, तो दीज टू टाइप्स वी कैन ऑल्सो डिस्कस। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हम करते हैं जो अपने न्यूमेरिकल प्रोसीजर्स के लिए, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं फॉर फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन एंड दी प्रिडिक्शन के लिए। Moving further to the next part, which is the frequency distribution. Okay, so first we need to understand the what does it mean by the frequency distribution. The frequency distribution is a table, organized data or a table used to organize data, where we represent the two column, the left column called the classes or group, which includes all the possible responses on variable studied. Okay, and the right column is list of frequencies or number for each class. Okay, a relative frequency distribution is obtained by the dividing each frequency by number observation multiplying by the resulting of the proportion by 100%. So in this as you can see the table of this, you can see the table on your screen. Here we have mentioned two columns. First column refer the, which is the left column, possible responses. These are the responses for sedentary, एक्टिव, वेरी एक्टिव। ओके, ये कोई हमारा पार्टिसिपेंट्स का डेटा है जो हमने उठाया है। उसमें हमने तो दो कॉलम है। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझेंगे? इसमें जो पहला कॉलम है इसमें आपका नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वगैरह दिए हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पर जो आपका दूसरा है वो यहाँ पर उनकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि सेडेंटरी पार्टिसिपेंट है 2183 और उनकी परसेंटेज कितनी है 48.9%। इसी तरह से जो एक्टिव पार्टिसिपेशन हैं वो 757 है, और उनकी अगर हम परसेंटेज लगाएं 100% में तो उनकी है 17%। वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन 1520, द percentage of the participation is 34.1. So these things are called the frequency distribution. When we distribute the frequency with the help of the number of the observation and the number of the frequency. Okay, कि किसकी फ्रीक्वेंसी को हम कैसे दिखाएंगे कि कितनी परसेंटेज है, या फिर हम उसकी नंबर से दिखाएंगे। यहाँ पर हमने परसेंटेज से दिखाया है। अगर हम कोई दूसरा डेटा लेते हैं, तो अगर हम दूसरे डेटा की बात करें तो ये कोई डेटा है हमारा, फॉर एग्जांपल सर गुंजन को ऐड कर लीजिए, वेटिंग में है। ये कोई हमारा हम डेटा दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके हमने 3 कॉलम बनाए। यहाँ पर स्टूडेंट नेम, ठीक है, यहाँ पर मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर जो उसको मिले हुए हैं, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हमने लिख दी यानी परसेंटेज। ये एक जस्ट एग्जांपल है। पहला स्टूडेंट जिसका नाम है ए, उसको मिले हैं 60 मार्क्स, और उसकी टोटल परसेंटेज जो टोटल में से है वो है 40%। ठीक है, इसी तरह से कैंडिडेट बी, इसको मिले हैं 35, और उसकी परसेंटेज है 60।
तो टोटल हम इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100%। तो 100% में से है, और इसका हो जाएगा टोटल जो मार्क्स हैं 5, 8। तो दिस वे वी कैन डिस्ट्रीब्यूट, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको एक तरफ जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और दूसरी तरफ आपको परसेंटेज या फिर नंबर। 95 आएगा। ओके, हाँ 95, 95, दिस इज 95। तो यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज है वही आएगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो आपके मार्क्स या फिर आपके जो फ्रीक्वेंसी आपकी ऑब्जर्वेशन हैं वो आएंगी। ये 95 है, 85 नहीं है, 95 है, ये 100% है। कि जब हम डेटा को किसी टेबल के साथ यूज करके दिखाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें दो कॉलम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, सभी को दिख रहे होंगे यहाँ पर। एक कॉलम तो ये है और दूसरा कॉलम ये है, और ये हमारे जो तीन है ये वेरिएबल हैं, ठीक है, जो वेरी कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन। अब इसमें जो आपको दिखे हैं ये नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, ये इनकी नंबर ऑफ परसेंटेज है। तो यहाँ पर इस लेफ्ट कॉलम में हम लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसमें लिखते हैं परसेंटेज या फिर उसका नंबर, ठीक है। यानी अगर हमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन 2000 का है, 2000 2183 का, तो उनकी परसेंटेज कितनी है। और एक्टिव पार्टिसिपेशन फिर है 757 की परसेंटेज 17 है। फिर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये टोटल हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो है 4460 का ऑब्जर्वेशन है। हमने 4460 लोगों का डेटा लिया है, उसमें हमने तीन क्या करे, तीन वेरिएबल बना दिए कि आप कौन से लोगों ने एक्टिव पार्टिसिपेट किया है किसी वेबिनार या किसी सेमिनार में, किन लोगों ने बहुत कम पार्टिसिपेशन किया है, और किन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है। तो उसको हमने यहाँ पर तीन कैटेगरी में अलग अलग लिख दिया है, और उसमें फिर हमने डेटा लेके उसको मेंशन कर दिया है। तो जब हम इस तरह से मेंशन करते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट दी डेटा विद द हेल्प ऑफ द टेबल, जहाँ पर हम एक तरफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ परसेंटेज या फिर हम उसको नंबर से दिखाते हैं। सो दैट इज हाउ वी कैन मेक दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं दिल्ली मेट्रो का, ठीक है। हमारे पास 4 मेट्रो हैं। अब 4 मेट्रो हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। एक मेट्रो है जो कि 4 राउंड लगाती है, यानी फ्रीक्वेंसी मतलब कितना उसका आना जाना एक प्लेटफॉर्म पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। तो एक का 4 बार है, एक का 6 बार है, एक का 8 बार है। जब हम इसको टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक दूसरा एग्जांपल हो सकता है, ओके। तो टेबल और चार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए, तो हम तो पहले टेबल जो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू बताई थी टेबल। तो टेबल क्या है, एक तरह से द क्लासेस दैट वी यूज टू कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर सिंपली द पॉसिबल रिस्पॉन्सेज ऑफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल। बार चार्ट्स एंड पाई चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर दिस। तो दे हैव मेंशन द टेबल, और चार्ट क्या कहते हैं, चार्ट टेबल का जब भी यूज कर, अभी हमने बताया था आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हम अपने डेटा को जो हमने ऑब्जर्वेशन ली हैं उनको हम किसी एक बॉक्स के थ्रू दिखाते हैं, जिसमें आप अलग से कुछ कैटेगोरिकल वेरिएबल लेते हो, जो और कुछ आप लेते हो न्यूमेरिकल वेरिएबल, न्यूमेरिकल वे से दिखाते हो, तो उसको हम बोलते हैं टेबल। और चार्ट की हम जब बात करेंगे हम उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल, ग्राफिक नॉट जियोग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम कॉमनली दो का यूज करते हैं, बाय पाई चार्ट और दी बार चार्ट। ये आपको जो यहाँ पर इसका जो दिख रहा है ये एग्जाम्पल, ये बार चार्ट का एग्जाम्पल है। तो दोनों ही डेटा को हमने अलग अलग तरीके से मेंशन किया है। ये हमारा न्यूमेरिकल वे में टेबल फॉर्म में है, ये हमारा कैटेगोरिकल हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर भी देखो सेंडेटरी, एक्टिव और वेरी एक्टिव, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी है, और यहाँ पर हमने इसकी नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन लिख दी है, ठीक है। इसकी परसेंटेज हो गई, ये इसकी पार्टिसिपेशन के नंबर हो गए। तो आप इस तरह से इसको भी दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बार चार्ट। दूसरा हम पाई चार्ट का भी इसे यूज कर सकते हैं। पाई चार्ट हम नीचे पढ़ेंगे और डिटेल में।
ठीक है। तो क्रॉस टेबल विच मीन्स उसको हम क्रॉस टैब भी बोलते हैं या क्रॉस टेबल बोलते हैं। तो क्रॉस टेबल एक तरह का टेबल है जिसमें आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और उसकी वैल्यू की दो कैटेगरी हम ऑर्डिनल में दिखाते हैं, कैटेगरिकली दिखाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल इंटरवल्स फॉर ऑल टू वेरिएबल्स डिफाइन द सेल्स इन टेबल। अ क्रॉस टेबल विथ रो एंड कॉलम इज रेफर्ड एज अ आर इंटू सी। इसको हम आर इंटू सी, अब हम इसको एग्जाम्पल के तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एक डेटा है कोई, देखो डेटा हमारा वही है पार्टिसिपेंट्स का, जो जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया है और जो वेरी एक्टिव पार्टिसिपेट रहे हैं जिनका। तो हमने दो तरह का डेटा ये लिया है। ये एक तरह का इसमें जिसमें हमने मेल्स, अभी तक हमने सिर्फ पार्टिसिपेंट बांटे थे। इसको हम ऐसे दिखाते हैं तो उससे समझ में आएगा। ओके। तो पहले सबसे पहले हमने जब डेटा बनाया था, सबसे पहले हमने जो लिया था वेरी लो पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो इसमें हमने देखा था, पहले तो हमने 2000 तकरीबन का हमारा डेटा एक्टिवली का था, वेरी एक्टिव का था, वेरी लो का था, और ऐसे लिखते हैं हम लो पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें पहले हमारे पास जो डेटा था उसमें हमने 2000 तकरीबन का हमारा लो पार्टिसिपेशन था, 757 का एक्टिव पार्टिसिपेशन था, एंड 250 का तकरीबन वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। ठीक है। इसी अकॉर्डिंग हमारा जो परसेंटेज था वो यहाँ पर 49, 21 इस तरह से परसेंटेज दी हुई थी। अब हमें ये तो नहीं पता था कि ये तो खाली हमें ये नहीं पता था कि ये पार्टिसिपेशन मेल का है या फिर फीमेल का है। जब हम इसको दो तरह से मेंशन करेंगे, इस जो हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट हैं 2157, साथ इसको छोड़ दीजिए, आप अभी परसेंटेज को रहने दीजिए, ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ा था। जो हमारे ये जो परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल अगर हम उनका एग्जैक्ट डेटा लें जिन्होंने हमें दिया था, तो 2183 इनका लो पार्टिसिपेशन था, 757 इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, और 1520 इनका वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन था। टोटल इसका जो था हमारा टोटल आ रहा था, टोटल इसका 03446 ओके। तो ये हमारा टोटल है। अब हमें इसमें ये नहीं मालूम है कि कितने लोगों ने, कितने मेल हैं इसमें, कितने फीमेल हैं। जब हम इसमें मेल और फीमेल जब लिखेंगे तो उसी को हम बोलेंगे फिर क्रॉस टैब, यानी क्रॉस टैबुलेशन। ठीक है। जैसे कि हम उसको अब कैटेगरी में बांट दें इसकी, एक नया कॉलम हमने बना दिया मेल का। तो इसमें मेल मान लिया जाए 957 थे, इसमें 340 थे जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, और 852 तकरीबन हमारे वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन वाले थे। तो हम जब इस तरह से कैटेगोरिकली दिखा रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं, फिर इसी तरह से हम फीमेल को दिखाएंगे तो इस तरह का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस टैबुलेशन।
इसी तरीके से हम इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। पहले हमारा सिर्फ एक एक बार चार्ट आ रहा था, सिर्फ ये बार चार्ट आ रहा था जो ब्लू कलर का था। अब हमने इनको डिवाइड कर दिया मेल्स और फीमेल्स में, तो इनका जो बार चार्ट है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है। अब जो हमारे पास हमने दो तरह की कैटेगरी में इसको बांट दिया है, और इसमें हमारे जो तीन इनके वेरिएबल हैं, लो पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन और वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन, वो तीनों एक ही में आ गए हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये मेल है, ये मेल का डेटा है, ये फीमेल का डेटा है। तो हम इस तरह से क्रॉस टैब को बार चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम क्लस्टर बोलेंगे, क्लस्टर बार चार्ट है ये। क्लस्टर का मतलब झुंड जो होता है ना, कभी हम जब झुंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 का झुंड है, तो एक क्लस्टर है। और जब सिंगल था तो खाली सिंगल बार चार्ट था, और अब ये हो गया है क्लस्टर बार चार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। पाई चार्ट, पाई चार्ट क्या होता है वो देखते हैं। पाई चार्ट हालांकि हमने पहले कर लिया, एक बार फिर देख लेते हैं पाई चार्ट का क्या मतलब है। जब हम इन चीज़ों को जब हमारी सारी चीज़ें बन गई हैं, टेबल में दिखा दी हैं, तो एक तरीका तो है हमारा बार चार्ट, और दूसरा तरीका है पाई चार्ट। ठीक है। जब हम किसी चीज़ को सर्कल वे में उसके उसके जो पार्टीशन है, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बार चार्ट के थ्रू दिखाया है, इसी को अगर हम एक सर्किल में 49%, जैसे इन्होंने दिखाया यहाँ पर 0.5%, 36.54%, इस तरह से मेंशन करेंगे तो हम उसको बोलते हैं पाई चार्ट। तो हम उसको जितने भी हमारे परसेंटेज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जब हमको उसके अकॉर्डिंग ही एक सर्किल के थ्रू दिखाते हैं या फिर सर्किल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पाई कहते हैं। ठीक है। सर्किल को हम पाई कहते हैं। आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर हम यूज करते थे ये उसके फॉर्मूले में, सर्कल के। जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उनको मालूम होगा। ठीक है। तो इसलिए हाँ, तो ये पाई चार्ट इस तरह से हम जब इसके रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी, इसके जो छोटे छोटे पीसेस आप देख रहे होंगे, ये एक पीस ये है, एक पीस ये है, तो इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। द पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया इज ईच सेगमेंट प्रोपोर्शनली टू दी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि इसका हर एक पोर्शन दिए गए फ्रीक्वेंसी को कॉरस्पॉन्ड करता हो, यानी जैसा हमने टेबल में दिखाया है उसी तरह का वो अपने उसमें दिखाता हो। इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपके जितने भी हैं, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ये सभी जो आपके ब्राउजर हैं, ये सभी ब्राउजर आपके वहाँ यूज होते हैं विंडो सिस्टम में, विंडो में। ठीक है। और ओपेरा भी। जो सफारी है ये होता है जो आपका एप्पल का होता है ना, एप्पल के लैपटॉप आते हैं उसमें यूज होता है सफारी।